Hello children, welcome to your maths class. Children, you know that we are doing chapter 14 of your maths textbook. So in this video, we will continue the same chapter. We'll continue chapter time. Children, before starting the exercise, let's see what all we have covered till date. Whatever exercises we have done till date, we will have a quick revision of that and then we'll start a new exercise. Children, in this chapter we talked about clock and time. हमने इस चैप्टर में क्लॉक और क्लॉक को किस तरह से रीड करते हैं, आवर्स को किस तरह से रीड करते हैं, दैट वी लर्नड इन दिस चैप्टर. घड़ी में जो वॉल क्लॉक है या रिस्ट वॉच है जो भी है, उसमें आवर्स के टाइम को कैसे रीड करते हैं, जो घंटे के टाइम होते हैं उसको कैसे रीड करते हैं, दैट वी लर्नड. ओके, वी क्लॉक एंड टाइम. Then we learned number of days. हमने number of days जो है वीक में number of days कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं. How many days are there in a week and the names of those days we learned. How many days are there in a week and the names of those days we learned. Okay? Names of days. एंड देयर प्रॉपर ऑर्डर, किस ऑर्डर में वो डेज आते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ये हमने प्रॉपर ऑर्डर में सीखा. हमने एक राइम सीखी जिसमें कि डेज ऑफ वीक आते हैं. फिर हमने सीखा नेम्स ऑफ मंथ्स. हमने सीखा नेम्स ऑफ मंथ्स. हमने मंथ्स के नेम सीखे और प्रॉपर ऑर्डर में किस सीक्वेंस में वो मंथ्स के नेम आते हैं वो हमने सीखा, है ना. और हमने सीखा कि हर मंथ में कितने डेज आते हैं. नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ. नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ. नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ, ये सीखा. फिर हमने सीखा कि सीजन्स किस तरह से मंथ्स में डिवाइडेड हैं. ओके, और हाउ मंथ्स आर डिवाइडेड बिटवीन सीजन्स. ओके, मंथ्स एंड सीजन्स. Then we learned the major festivals that come in which particular month. जो मेन जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, वो कौन से मंथ में आते हैं, किस मंथ में कौन सा फेस्टिवल होता है, ये भी हमने सीखा. ये भी हमने इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में, चैप्टर में सीखा. ठीक है. तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है एक्टिविटी वर्कशीट. हमारी एक्टिविटी वर्कशीट है जो हम आज के वीडियो में करेंगे. आज की वीडियो में हम करेंगे आपकी बुक का एक्टिविटी वर्कशीट, पेज नंबर 157. पेज नंबर 157. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 157. Page number 157. Open this page of your book. Children, in this activity, the first question is, read the time and write it in the placeholders. Children, 4 clocks are given. As you can see in your book, page number 157. In question number 1, 4 clocks are given. 4 घड़ियां बनी हुई हैं, 4 क्लॉक्स बने हुए हैं और आपको बताना है कि उन क्लॉक्स में क्या टाइम हो रहा है. यू हैव टू रीड द टाइम एंड यू हैव टू राइट इट इन द प्लेस होल्डर. यू हैव टू राइट इट इन द प्लेस प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग इट. आप क्लॉक को देखिए, आप उसमें टाइम रीड कीजिए और बताइए कि व्हाट इज द टाइम इन दैट क्लॉक. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट वी विल draw the clock to understand it.
Children, we have already done it. Worksheet is actually a revision of all the exercises. So in fact, we are doing the revision of the chapter. Okay, this worksheet number 13 is actually the revision of the chapter. So first we'll have the clock. Okay, हम पहले clock बना लेते हैं. We will have 4 clocks. Okay, we will have 4 clocks. Or okay, 2. Let's have थोड़ा और छोटा बना दें so that all the 4 clocks can be adjusted in this. Okay, we'll have 4 clocks. One, 2, 3, and other one is 4. Okay, we have 4 clocks. हम इसको clocks यहाँ draw कर लेते हैं. Okay, let's draw the clocks. The circle is not perfect, but it will give you an idea of clock actually. I don't have compass etc. to draw this, so ऐसे हमने बनाया 12, 6, 3, 9. Then between it we will put marks and this will be a rough clock. ये हमारा rough clock ready है. ठीक है? This is our rough clock. 12, 3, 6, 9. Then between it we will put the other numbers and our clock will be ready. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. Okay. In the same way, we will draw the rest of the clocks. 12, 3, 6, 9, and then we will mark. Okay. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Again, 12, 3, 6, 9. ये हमारे 4 clocks ready हैं, which are given in your book. आपके book में भी 4 clocks हैं, and here also we have drawn 4 rough clocks. Now I will draw the hands of the clock. Children, the shorter one, the short hand is on 6 and long hand is on 12. Okay, this is short. थोड़ा और छोटा कर देते हैं. Okay, short hand is on 6 and long hand is on 12. In this clock, the short hand is at 9 and long hand is at 12. Then in this, the short hand is at 4 and long hand is on 12. And here the short hand is at 1 and long hand is at 12. Okay, this is the time shown in the clock. Now you have to read the time. You have to read the time in each clock. Children, the short hand is on 6. The short hand is on 6, which means the time is 6. And is it exact 6? Yes, because the long hand is on 12. So the time is 6 o'clock. I have told you, you have to see the position of short hand. You have to see the position of short hand. और जिस नंबर पे शॉर्ट हैंड होता है, that is the time. छोटा वाला जो हैंड है वो जिस नंबर पे होगा, that will be the time. So here short hand is on 6. It means it is 6 o'clock. So you will write here 6 o'clock. Okay. Now look here. What is the time in this clock? Children, the short hand is on 9 and long hand is on 12. And the short hand is pointing or facing toward 9.
The shorthand is toward 9, so the time is 9 o'clock. Time is 9 o'clock. Okay, then we have next one. Children, here you can see the shorthand is at 4. The shorthand is at 4 and longhand is at 12. So the time is 4. Why? Because the shorthand is pointing toward 4. Shorthand जो है वो 4 पे point किया हुआ है. So we will write here 4 o'clock. I will write here 4 o'clock. Now look at this clock. Here the shorthand is pointing toward 1. The shorthand is facing 1 and longhand is at 12. So the shorthand is at number 1. So the time is 1 o'clock. Here 1 o'clock. Okay. So this is the time you have to write in the place provided. जहाँ पे आपकी बुक में जगह है वहाँ पे you have to write the time. I hope reading of clock is clear to you all. Okay. Now moving on to the next exercise. Okay children, you can see question number 2 in your book. अब अपनी बुक में question number 2 देखिए. Sonia starts from Delhi at 7 o'clock. It takes her 4 hours to reach Agra. At what time will she reach Agra? Now understand the question first. Sonia starts from Delhi at 7 o'clock. सोनिया जो है वो दिल्ली से स्टार्ट करती है चलना व्हीकल से या जैसे भी 7 o'clock मॉर्निंग में 7 o'clock वो चल रही है. ठीक है. शी स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 7 o'clock. सुबह के 7 बजे सुबह के 7 o'clock वो स्टार्ट करती है और आफ्टर 4 hours 4 घंटे के बाद वो आगरा पहुंचती है. कहाँ पहुंचती है? आगरा, जहां पर ताजमहल है ना. तो आफ्टर 4 o'clock आफ्टर 4 hours 4 घंटे के बाद वो आगरा पहुंचती है. मतलब वो कितने बजे आगरा पहुंचेगी? उसने स्टार्ट कितने बजे किया? उसने स्टार्ट किया 7 o'clock पर. ठीक है. अब 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद आएगा 8. 8 के बाद क्या आएगा? 9. 9 के बाद क्या आएगा? 10. ठीक है. और 10 के बाद क्या आएगा? 11. 7 से 1 8 1 hour. 8 से 9 2 hours. 9 से 10 3 hours एंड 10 से 11 4 hours. 4 घंटे हो गए. ठीक है. 4 घंटे हुए. उसने 7 o'clock स्टार्ट किया चलना. ठीक है. तो 7 में आप 7 से स्टार्ट करो. 7 से 8 पे पहुंचे. 8 o'clock बजा. 8 o'clock टू 9 o'clock. 9 o'clock टू 10 o'clock एंड 10 o'clock टू 11 o'clock. 4 hours हो गए. अब 7 को नहीं काउंट करो. 7 को तो उसने स्टार्ट किया था, है ना. तो 7 बजे तो स्टार्ट किया, तो हम 7 को काउंट नहीं करें. 7 से 8 1 घंटा. 8 से 9 2 घंटा. 9 से 10 3 घंटा और 10 से 11 4 घंटा. 4 घंटे हो गए. मतलब कितने बजे वो पहुंचेगी? 11 o'clock. शी विल रीच 11 o'clock. ठीक है. और बेस्ट वे क्या है? 7 बजे वो चली थी, उसमें आप 4 hours प्लस कर लो. 7 बजे वो उसने स्टार्ट किया था और 4 घंटे लगे, 4 hours लगे, तो ये 4 प्लस कर लो. 7 + 4 11. मतलब वो 11 o'clock आगरा पहुंचेगी. When will she reach Agra? She will reach Agra at 11 o'clock. Okay? She will reach Agra at 11 o'clock. वो 11 बजे 11 o'clock she will reach Agra. Got? समझ में आपको? सोनिया ने दिल्ली से स्टार्ट किया 7 o'clock को. 7 बज चुके हैं. ठीक है. उसके बाद वो स्टार्ट किया एंड शी रीच्ड आगरा आफ्टर 4 hours. ठीक है. 4 घंटे के बाद. तो 7 + 4 11. या आप ऐसे काउंट कर लो. 7 के बाद से गिनो. 7 के बाद 8 9 10 11. 4 घंटे हो गए. ओके. 8 9 10 11. 4 hours 11 हो गए. मतलब 11 o'clock. She will reach Agra at 11 o'clock. Okay. Now next question is,
टिक द मंथ विच हैव 30 days. टिक द मंथ विच हैव 30 days. कौन से मंथ हैं जिसमें कि 30 days होते हैं? कौन कौन से मंथ हैं जिसमें 30 days होते हैं? एंड चिल्ड्रन, द मंथ्स विच आर गिवन हियर, आपकी बुक में जो मंथ्स दिए हैं उसमें क्या दिया है? मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, जुलाई and June. Now what you have to do? You have to put a tick in that column which has 30 days. कौन कौन से मंथ हैं जिसमें 30 days होते हैं? So children, this I have taught you. 30 days have September. मतलब सितंबर में 30 days होते हैं. अप्रैल, जून एंड नवंबर, मतलब अप्रैल में और जून में. नवंबर यहाँ नहीं लिखा हुआ है. सो अप्रैल, सितंबर एंड जून हैव 30 days. चिल्ड्रन, among all these months, April has 30 days, September has 30 days and June has 30 days. रेस्ट जो मंथ्स हैं उसमें कितने डेज होते हैं? दे हैव 31 days. ये जो मार्च है इसमें भी 31 days होते हैं, अगस्त में भी 31 days होते हैं और जुलाई में भी 31 days होते हैं. और अप्रैल, सितंबर एंड जून हैव 30 days. ठीक है. और शॉर्टेस्ट मंथ तो हमें पता ही है कि फरवरी होता है. ओके, दिस इज ऑल क्लियर. You have to tick only. You have to put a tick mark in the box, in the bracket, which has 30 days. The month which has 30 days. And April, September and June, these 3 months have 30 days. Clear? Now children, question number 4. Question number 4 है, राघव's birthday is on 14th April. राघव का बर्थडे 14th April को है. His sister Rini's birthday falls exactly 2 months later. और उसकी जो बहन है रिनी, उसका बर्थडे राघव के बर्थडे के 2 month के बाद आता है, आफ्टर 2 months. ठीक है. When is Rini's birthday? तो आपको बताना है कि रिनी का बर्थडे कब आएगा. ठीक है. सुनिए, राघव का बर्थडे कब है? 14th April. राघव का बर्थडे है 14th April को. उसके सिस्टर रिनी का बर्थडे कब है? एग्जैक्टली आफ्टर 2 months. 2 months लेटर. ये जो डेट है इससे ठीक 2 महीने के बाद. ठीक है. His sister Rini's birthday falls exactly 2 months later. लेटर मतलब बाद में. लेटर मतलब बाद में, मतलब 2 months के बाद में. रिनी का बर्थडे कब है? 2 months के बाद में. एग्जैक्टली इस डेट यही रहेगी, बस मंथ चेंज हो जाएगा. तो अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? विच मंथ फॉल्स आफ्टर अप्रैल? अप्रैल के बाद आता है, यस, मई. अप्रैल के बाद आता है मई. तो क्या मई में बर्थडे है रिनी का? नो, 2 months बोला है. तो मई के बाद कौन सा मंथ आता है? जून. अप्रैल के 2 month के बाद, मतलब कि मई और जून. ठीक है. तो जून के 14 डेट को. ठीक है. रिनी का बर्थडे कब आएगा? अप्रैल के बाद, ठीक 2 months के बाद. ये अप्रैल चल रहा है, मान लो कि अप्रैल है, तो अप्रैल के 2 महीने बाद क्या आएगा? मई, जून. मतलब जून की 14 डेट को रिनी का बर्थडे है. रिनी's बर्थडे विल फॉल ऑन 14th of June. ओके. रिनी's बर्थडे विल फॉल ऑन 14th of June, which is exactly 2 months after this date. अप्रैल के 2 महीने के बाद क्या आएगा? जून, 14 जून. 14 अप्रैल से 14 मई, 14 मई से 14 जून, मतलब ओके. रिनी's बर्थडे विल फॉल ऑन 14 जून आफ्टर 2 months. अप्रैल के बाद के जो 2 महीने हैं उसमें, तो सेकेंड मंथ.
नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. सम डेज आर गिवन. ठीक है, और इसको हम करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 5. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स. Let me go that side, move that side. Fill in the blanks. Now what you have to do? First one is today is Tuesday. Today is Tuesday. Tomorrow will be blank. Now children, read the sentence. Today is Tuesday. आज ट्यूसडे है. हम ये मान के चलते हैं कि आज ट्यूसडे है. आज ट्यूसडे है. तो टुमारो विल बी, तो कल क्या होगा? टुमारो मतलब द नेक्स्ट डे. ओके, टुडे इज ट्यूसडे. व्हाट विल बी द नेक्स्ट डे? हमारा जस्ट नेक्स्ट डे कौन सा होगा? टुमारो विल बी विच डे? विच डे विल बी टुमारो? अगर आज ट्यूसडे है तो नेक्स्ट डे क्या होता है? ट्यूसडे के नेक्स्ट डे क्या होता है? यस, वेंसडे. आफ्टर ट्यूसडे कम्स वेंसडे. So if today is Tuesday, tomorrow will be Wednesday. Okay, Wednesday. We will write Wednesday. If today is Tuesday, tomorrow is Wednesday. Okay. Next, B. Today is Friday. Today is Friday. Yesterday was black. अब हम ये मान के चलते हैं कि आज फ्राइडे है. टुडे इज फ्राइडे. आज फ्राइडे है तो यस्टरडे मतलब द डे दैट इज पास्ट, जो बीत चुका है वो दिन. आज फ्राइडे है तो कल क्या था? What was yesterday? What was yesterday मतलब the day that has gone, the day that has just passed. कल का दिन क्या था? क्या होगा नहीं, क्या था? Which day was yesterday? Which day was the previous day? जो previous day को yesterday बोलते हैं, पहले वाला दिन, एक दिन पहले का, just a day before. एक दिन पहले कौन सा दिन था? तो एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? अगर आज फ्राइडे है तो आज फ्राइडे है तो कल क्या होगा? क्या था मतलब कल क्या था? थर्सडे. कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है. कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है. तो वी विल राइट हियर थर्सडे. Okay, if today is Friday, yesterday was Thursday. Okay, if today is Friday, yesterday was Thursday. Now moving on to the next one. In which month Republic Day is celebrated? Okay, the next question is
इन विच मंथ इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? रिपब्लिक डे किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा मंथ है जिसमें कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है? सो चिल्ड्रन, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, yes, do you remember? It is celebrated in the month of January. Republic Day is celebrated in the month of January. 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी बोलते हैं ना इसको। हम ईवीएस में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेज टू सेलिब्रेट। उसमें हमने अभी रिसेंटली लर्न किया है, रिसेंटली वी लर्न दैट Republic Day is celebrated on 26th of January. So in which month it is celebrated? It is celebrated in the month of January. Okay, Republic Day is celebrated in the month of January. January, January. Okay, now next one. Which is the 6th month of the year? Here you have to write which is the 6th month of the year. जो आपका एनुअल कैलेंडर होता है उसकी काउंटिंग जब आप करोगे तो 6th नंबर पर कौन सा मंथ आता है, ठीक है। फॉर दिस यू मस्ट रिमेंबर द करेक्ट सीक्वेंस और द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मंथ। आपको मंथ का करेक्ट ऑर्डर, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि आपको मंथ के नेम्स हमेशा करेक्ट ऑर्डर में पता होने चाहिए, ठीक है। हमें प्रॉपर सीक्वेंस में मंथ के नाम हमें मालूम होने चाहिए, तभी हम इसको ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं 6th मंथ, 4th मंथ, 9th मंथ, 7th मंथ, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें मंथ्स के नाम प्रॉपर ऑर्डर में पता होंगे, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि विच इज द 8th मंथ, विच इज द 12th मंथ, विच इज द 2nd मंथ, विच इज द 7th मंथ, तो आपको अगर सीक्वेंस में नाम पता होंगे तो यू वुड बी एबल टू डू इट। आप इसको आराम से कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है विच इज द 6th मंथ ऑफ द ईयर। तो ईयर का 6th मंथ कौन सा होता है? लेट्स काउंट। जनवरी, फरवरी, 3rd इज मार्च, 4th इज अप्रैल, 5th इज मई, 6th इज जून। तो कौन सा मंथ है? जून इज द 6th मंथ ऑफ द ईयर। अब जनवरी से आपने काउंट शुरू किया, 6th नंबर पे कौन सा मंथ आया? जून आया ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड 6th नंबर पे कौन सा आया? जून। सो विच इज द 6th मंथ? आंसर इज जून। जून इज द 6th मंथ ऑफ द ईयर। जून जो है वो जो 6th मंथ है, ईयर का 6th मंथ है, ठीक है। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, वी हैव कंप्लीटेड द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द वर्कशीट। इस वर्कशीट का हमने फिल इन द ब्लैंक्स हम कर लिया हमने, ठीक है। नाउ द वर्कशीट इज ओवर, ओके। द वर्कशीट वी हैव कंप्लीटेड। Children, you will practice all the exercises given in the chapter. We have completed the chapter. In fact, along with this worksheet, your chapter is complete. हमने आज ये वर्कशीट पूरी की और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, पर चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि काम खत्म। आपको इसकी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करती रहनी होगी, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। आप भूल जाओगे, स्पेशली मंथ के नाम और उसकी जो स्पेलिंग्स होती हैं उसको आपको कंटिन्यूसली आपको बीच बीच में याद करते रहना होगा, अदरवाइज यू मे फॉरगेट। आपको इसमें जो एक्सरसाइजेस हैं क्लॉक्स की
वो आप कर लीजिए। घर में जो क्लॉक है उसको यूज करेंगे। हर बार आप क्लॉक ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इट्स बेटर कि घर में जो क्लॉक है उसको आप यूज कीजिए। आप उसमें जब आप क्लॉक देखेंगे तो ट्राई टू रीड द टाइम। आप आवर्स वाले टाइम उसमें रीड करने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लॉक तो रीड करना बहुत आराम से आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेज आप कैसे याद करोगे? आप हर दिन पता करना कि आज कौन सा डे है और नेक्स्ट डे कौन सा आने वाला है। सब आज जो भी दिन है आप देखो कि 21 जो डेट है वो कौन सा दिन होगा? इट इज ट्यूसडे, है ना। 21 इज ट्यूसडे। ओके, 21 is Tuesday. What will be 22? What will be 22? 22 will be Wednesday. ऐसे ही आप पता करते रहना कि नेक्स्ट डे कौन सा होगा, नेक्स्ट डे कौन सा होगा, या जो डे बीत गया वो कौन सा होगा। दिस विल गिव यू प्रैक्टिस ऑफ आफ्टर एंड बिफोर ऑफ द डेज। ठीक है, उसी तरह से मंथ्स का भी आप कर सकते हो। ये तो आपकी डे टू डे लाइफ का ही है। हमारी अभी जुलाई चल रहा है, उसके बाद कौन सा मंथ आएगा? अगस्त आएगा। जो बीत गया वो मंथ कौन सा था? जब आपका समर वेकेशन था वो जून था। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सच थिंग्स, दिस विल गिव यू अ गुड प्रैक्टिस ऑफ द एक्सरसाइज। और आपको कोई डाउट होगा, यू विल क्लियर दोज डाउट्स इन योर ऑनलाइन क्लास। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एज वेल एज द चैप्टर। थैंक यू।